Hello students, myself Dr. Vinita Rathore, Associate Professor of Zoology at SMB Government PG College, Nathdwara. Today we will study about characteristics of phylum Annelida. The word Annelida is derived from two words. The first word is from Latin language annulus, which means little ring, and the second word is from Greek language, that is eidos, which means forms. It means these annelids are in the form of little rings. Annelids are elongated, bilaterally symmetrical, triploblastic, truly coelomate, and metamerically segmented animals. They are the first animals to have a closed vascular system. These animals have paired appendages which are never jointed. They are commonly called as segmented worms. Annelida शब्द का विकास दो शब्दों से हुआ है, जिसमें प्रथम शब्द लैटिन भाषा का एनिलस है, जिसका अर्थ होता है छोटे छोटे वलय, और दूसरा शब्द ग्रीक भाषा का एडोस है, जिसका अर्थ होता है आकार। सामान्यतः एनिलिडा के प्राणी लंबे, द्विपार्श्व सममित और उच्च श्रेणी के संगठित प्राणी होते हैं, जिनमें विभिन्न अंग समूहों से मिलकर निश्चित तंत्रों का निर्माण होता है। इन जंतुओं का जो शरीर है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, अर्थात इनमें विखंडी भवन देखने को मिलता है। इन जंतुओं में ये पहला वर्ग है जिसमें कि बंद प्रकार का वैस्कुलर सिस्टम उपस्थित होता है। इन जंतुओं में यदि उपांग उपस्थित होते हैं तो वे कभी भी खंडित उपांग नहीं होते हैं। इन जंतुओं को सामान्यतया सखंड कृमि कहा जाता है। Habitat. Annelids are aquatic animals which are found in fresh water and sea water. Some of them are terrestrial and can be found in moist soil. Annelids are mostly free-living individuals and few of them are parasitic. The free-living terrestrial annelids are burrowing in nature. Second characteristic is metameric segmentation. The annelids are characterized by metameric segmentation. Metameric segmentation means their body is divided externally by ring-like grooves or the annuli and internally by transverse septa. The segments are called metamers. The first segment is called peristomium. An outgrowth known as prostomium arises from the peristomium. Annelida के जो जंतु हैं सामान्यतया ये जलीय जीव हैं जो कि स्वच्छ जल अथवा समुद्री जल में पाए जाते हैं। कई एनिलिडा के जंतु थलचारी भी हैं और ये नमी युक्त मिट्टी में पाए जाते हैं। इन जंतुओं में अधिकतर जंतु स्वतंत्र जीवी हैं और कुछ परजीवी भी हैं। इन जंतुओं में जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं वो बिलकारी जीव होते हैं। दूसरा गुण मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एनिलिडा के जंतु मेटामेरिक सेगमेंटेशन या खंडी भवन के द्वारा पहचाने जाते हैं। इनके शरीर में विखंडी भवन देखने को मिलता है, अर्थात बाहर इनके शरीर में जो खंड है वो बाहर एक ग्रूव के द्वारा वलय के रूप में दिखाई देते हैं और अंदर भी इनके शरीर में ट्रांसवर्स सेप्टा के द्वारा खंडों में विभाजित होते हैं। ऐसा खंडी भवन वास्तविक खंडी भवन कहलाता है। इनके शरीर का जो प्रथम खंड होता है उसको पेरिस्टोमियम कहा जाता है। पेरिस्टोमियम से एक आउटग्रोथ बाहर निकलती है जिसे कि प्रोस्टोमियम कहा जाता है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स।
In annelids, setae and parapodia are present as locomotory organs. In these animals, for locomotion, segmentally arranged hair-like structures are present, or you can say repeated chitinous bristles are present, which are called as setae. Setae are also termed as chaetae, and they are embedded in the skin. Parapodia are also present in annelids for locomotion, and they are the lateral fleshy appendages. Except leeches, unjointed chitinous setae are often present. Some annelids, such as Nereis, have unjointed locomotory structures which are termed as parapodia. Parapodia means para means parallel and podia means feet. Body wall. The body wall of annelids consists of thin and moist non-cellular cuticle, single-layered epidermis, and circular and longitudinal muscles. The muscles are smooth, which are highly contractile and help in locomotion. Annelida के जीवों में गमन हेतु सीटी अथवा पैरापोडिया पाए जाते हैं। प्रचलन में सहायक काइटिनी शूक या रोम प्रत्येक खंड की त्वचा में धसे रहते हैं या पार्श्वीय मांसल उपांगों या पार्श्व पादापों में होते हैं। इनकी देह भित्ति एक कंटीन्यूअस लेयर के रूप में क्यूटिकल पाई जाती है, जो कि नॉन सेल्यूलर होती है और पतली होती है। इनकी देह भित्ति में एक परत वाली एपिडर्मिस पाई जाती है तथा दो तरह की पेशीय लेयर्स पाई जाती हैं, एक सर्कुलर मसल लेयर्स एंड दूसरी सेकंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। इनकी जो पेशियां हैं वो स्मूथ या चिकनी पेशियां होती हैं जो कि काफी कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं और गमन में सहायक होती हैं। Coelom or body cavity. A true coelom is present in annelids. From evolution point of view, annelids are perhaps the first animal to have a true schizocelic coelom. A true schizocelic coelom is the coelom which is formed by splitting of the mesoderm, and therefore it is lined on both the sides from the cells of mesoderm. In most animals, coelom is divided by septa into compartments. The coelom is filled with coelomic fluid which contains cells or the corpuscles. Hydroskeleton. The coelomic fluid serves as a hydroskeleton in annelids. Annelida के जंतुओं में जो देह गुहा या प्रगुहा है वो एक वास्तविक प्रगुहा है। विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये ज्ञात होता है कि एनिलिडा के जीव प्रथम जीव हैं जिनमें वास्तविक प्रगुहा उपस्थित होती है। इनकी देह गुहा दीर्ण गुहा होती है। दीर्ण गुहा अर्थात वास्तविक देह गुहा जिसका विकास भ्रूणीय मीजोडर्म की स्प्लिटिंग के द्वारा होता है। इसी कारण से देह गुहा दोनों तरफ से मीजोडर्म की कोशिकाओं के द्वारा आस्तरित रहती हैं। इन ज्यादातर एनिलिड्स के अंदर जो सीलोम है वो सेप्टा के द्वारा विभिन्न कोशों या कंपार्टमेंट्स में विभाजित रहती हैं। सीलोम के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है जिसे कि सीलोमिक द्रव्य कहा जाता है और इस सीलोमिक द्रव्य में कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। हाइड्रोस्केलेटन। देह गुहा में जो भरा हुआ सीलोमिक द्रव है वो एनिलिडा के जंतुओं में
हाइड्रोस्केलेटन का कार्य करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम। Digestive system of annelids is straight and complete, which starts from mouth and ends with the anus. And the digestion here is entirely extracellular digestion. It means the food material is digested inside the alimentary canal. Respiratory system. Exchange of gases usually occurs through the moist skin, or you can say cutaneous respiration takes place in annelids. In some of the annelids, gaseous exchange also occurs through gills, and such a respiration is termed as branchial respiration. For example, Teribella. पाचन तंत्र। एनिलिडा के जीवों का जो पाचन तंत्र है पूर्ण पाचन तंत्र होता है, जो एक सीधी नली के रूप में उपस्थित होता है। ये मुख से प्रारंभ होता है और गुदा छिद्र पर जाकर के पूर्ण होता है। इन जीवों में पाचन की प्रक्रिया बाह्य कोशिकीय पाचन के रूप में संपादित होती है, अर्थात पाचन केवल आहार नाल के अंदर ही किया जाता है। श्वसन तंत्र। एनिलिडा के जीवों में श्वसन हेतु जो इनकी त्वचा है, जो नमी युक्त त्वचा होती है, उसके द्वारा गैसों का विनिमय कर लिया जाता है, और ऐसे गैसों के विनिमय जिसमें कि त्वचा का इन्वॉल्वमेंट होता है उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन या त्वचीय श्वसन कहा जाता है। एनिलिडा के कुछ जंतुओं में गैसों का विनिमय गिल्स के द्वारा भी संपादित होता है, और गिल्स के द्वारा होने वाले श्वसन को ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। उदाहरण टेरिबेला। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। Blood vascular system is usually closed type in annelids. The blood is red in color due to presence of respiratory pigment, hemoglobin or erythrocrurorin. These respiratory pigments are found dissolved in blood plasma. Blood corpuscles are not present in annelids. Free amoeboid blood corpuscles are present, but there are no red blood corpuscles. In leech, there is no true blood vascular system. The coelomic space and fluid have been modified to form the circulatory system. It is called hemocoelomic system, and red coelomic fluid is called hemocoelomic fluid. रुधिर संवहन तंत्र। एनिलिडा के जीवों में रुधिर संवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है। इनके रुधिर का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि इसमें श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन अथवा एरिथ्रोक्रियोरिन उपस्थित होते हैं। हीमोग्लोबिन या एरिथ्रोक्रियोरिन जो श्वसन वर्णक हैं, ये कोशिकाओं में उपस्थित न होकर के रुधिर के प्लाज्मा में खुले हुए रूप में उपस्थित होते हैं। इन जंतुओं में जो ब्लड कार्पस्कल्स हैं वो अमीबीय कोशिकाओं के रूप में उपस्थित होती है, किंतु रेड ब्लड कार्पस्कल्स या लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं। जोंक में सही मायने में ट्रू ब्लड वैस्कुलर सिस्टम अनुपस्थित होता है, क्योंकि जोंक की सीलोमिक स्पेस में एक द्रव्य भरा रहता है जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य करता है। जोंक के सीलोमिक द्रव्य को हीमोसीलोमिक सिस्टम और हीमोसीलोमिक द्रव्य कहा जाता है, क्योंकि इस हीमोसीलोमिक द्रव्य में लाल वर्णक उपस्थित होते हैं और यह लाल रंग का दिखाई देता है।
Excretory system. The excretory system of annelids consists of metamerically arranged coiled tubular structures which are called as nephridia. The nephridia help in osmoregulation and excretion. The ammonia is the chief nitrogenous waste product released from annelids. Nervous system. The nervous system consists of nerve ring and a solid double midventral nerve cord with ganglia and lateral nerves in each segment. A ganglion is an aggregation of nerve cells. उत्सर्जी तंत्र। एनिलिडा के जीवों में उत्सर्जी तंत्र में विखंडी रूप से फैले हुए वृक्कक उपस्थित होते हैं। इन वृक्ककों के द्वारा जल नियमन एवं उत्सर्जन का कार्य किया जाता है। एनिलिडा के जीवों में मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का निष्कासन किया जाता है। तंत्रिका तंत्र। एनिलिडा के जीवों में तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी प्रमस्तिष्क गुच्छिकाएं या मस्तिष्क और एक दोहरा तंत्रिका रज्जु और प्रत्येक खंड में गुच्छिकाएं एवं पार्श्व तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। गुच्छिका का अभिप्राय है नव कोशिकाएं या तंत्रिका कोशिकाएं जब एक जगह एक समूह में इकट्ठी हो जाती हैं तो उन कोशिकाओं के समूह को गुच्छिका या गैंग्लियन कहा जाता है। सेंसरी ऑर्गन्स। In annelids, the sensory organs include tactile organs, taste buds, statocysts, photoreceptor cells, and sometimes eyes with lenses in some. The tactile receptors are the receptors which are sensitive to touch. Gustatoreceptors, which are receptors of the taste, and photoreceptors, which are receptors for light. These three different types of the sensory organs are very common in annelids. Some of the annelids are also having statocysts which act as balancing organ, and some have taste buds. The eyes are also present in some of the animals of phylum Annelida, and these eyes are with lenses in few of the annelids. Sexes. Both unisexual and bisexual condition can be seen among annelids. For example, Nereis, which is an example of unisexual individual, and earthworms and leeches are the examples of bisexual animals. Development. In annelids, the development is mostly direct. It means there is no larval stage in the life cycle of these animals. If there is an indirect development, for example, which is seen in Nereis, it includes a larva. The name of this larva is trochophore larva. Regeneration is also very common among annelids. संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियों में स्पर्शक अंग, स्वाद कलिकाएं, संतुलन पुट्टियां, प्रकाशग्राही कोशिकाएं एवं कुछ में कभी-कभी लेंस युक्त नेत्र उपस्थित होते हैं। एनिलिडा के जंतु उभयलिंगी या नर और मादा अलग-अलग देखने को मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर उभयलिंगी में अर्थवॉर्म्स और लीच और एक लिंगी में नीरीज आती हैं। इन जीवों में विकास
सामान्यतया प्रत्यक्ष होता है, अर्थात इनमें कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, किंतु नीरीज में विकास अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है और इस नीरीज के लार्वा को ट्रोकोफोर लार्वा कहा जाता है। सामान्यतया इन जंतुओं के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता भी पाई जाती है। यूनिक फीचर्स ऑफ Annelida. Annelids are metamerically segmented. Hemoglobin is present in plasma and nephridia are present for excretion and osmoregulation. And for locomotion, CT are present. विशिष्ट लक्षण। Annelida के जंतुओं के विशिष्ट लक्षण के रूप में पहला लक्षण है खंडीभवन। इनमें वास्तविक खंडीभवन पाया जाता है। बाहर और अंदर दोनों से इनके शरीर में खंड दिखाई देते हैं। इन जीवों के अंदर हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक के रूप में उपस्थित होता है, किंतु यह कोशिकाओं में न होकर के रुधिर के प्लाज्मा में उपस्थित रहता है। उत्सर्जन एवं जल नियमन हेतु इनके अंदर वृक्क पाए जाते हैं और गमन हेतु शूक उपस्थित होते हैं। Advancement over roundworms. The annelids are advanced than the roundworms. Annelids have metameric segmentation. Metameric segmentation means the outer segmentation corresponds with the inner segmentation. In the annelids, circular and longitudinal muscles are present in both body wall and the wall of the alimentary canal. Their coelom is a true coelom which is lined internally by mesoderm. The blood vascular system contains red blood. Annelida के जीव गोल कृमियों की अपेक्षाकृत अधिक उन्नत प्रकार के जीव हैं। इन जीवों में मेटामेरिक सेगमेंटेशन या वास्तविक खंडीभवन देखने को मिलता है, अर्थात बाहर से जो खंड दिखाई देते हैं, शरीर के अंदर भी वैसा खंडीभवन दिखाई देता है। वृत्ति पेशी तंतु एवं अनुदैर्ध्य पेशी तंतु शरीर भित्ति एवं आहार नाल की भित्ति को निर्मित करते हैं। इन जीवों में देह गुहा या प्रगुहा वास्तविक प्रगुहा होती है, क्योंकि ये मीजोडर्म के स्प्लिटिंग के द्वारा निर्मित होती है और दोनों तरफ से मीजोडर्म की कोशिकाओं द्वारा आस्तरित रहती हैं। रुधिर संवहन तंत्र में लाल रुधिर उपस्थित होता है। With this we complete the characteristics of phylum Annelida. In the next video, we will discuss about classification of Annelida.